Hi everybody, welcome back to my channel. Today's video is on how to score 40 on 40 in mathematics first semester board examination. Before that, I would like to tell you the marks division so that you can know what is the weightage of every chapter. And yes, I'm gonna tell you the important topics later in this video, so you must watch the video till the end, which you must learn, and some mistakes you should avoid in your maths exam. You can see GST is of 3 marks and this is approximate marks distribution. Do not think that this will be the only marks distribution. So it is of 3 marks, banking of 3 marks, linear inequation of 4 marks, quadratic of 6 marks, factorization 4 marks, ratio and proportion again 4 marks, matrices 4 marks, AP 6 marks and similarity 6 marks. Now in GST you're getting intra-state relations and you have to only do this part that is in your syllabus. There are limited number of questions that you have to practice. For banking, you have two formulas. Interest is equal to P into N plus 1 divided by 2 into 12 into R by 100. In this case, P is the principal, N is the number of years, R is the rate, and then you have to find maturity value. Sometimes students get confused when they are asked to find out the amount payable. Whenever they ask you to answer this, it is same as maturity value. And when they say find the amount or calculate the amount at the time of maturity, even that's same. This means they are asking you to find out maturity value. Maturity value आपको उसमें find out करना है. One very important thing that you should notice, you have to convert N, that is in years, into months. I have seen students putting the value of N equal to 2 when it is in years. You don't have to put 2 years, you have to calculate it in months. And then you have to put this value in N. N जो है वो months में ही होना चाहिए. Now in linear inequations, you should be familiar with all these terms like R, Q, I, W. R is real numbers, Q is integers, I is integer, W is whole number, and there are many other symbols. So you have to just read them. One more thing जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे जिसमें एरर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुछ इनइक्वालिटी है, आपने सॉल्व करी एंड यू गॉट 2x minus 2x लेस दैन 8. अब कई बच्चे ये करते हैं, वो इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे, -2 को इधर ले जा लेंगे, ठीक है, और आंसर कुछ गलत सा आ जाएगा. आपको क्या करना है, जब भी ऐसा हो हमेशा आपको x चाहिए पॉजिटिव. हमेशा ये ध्यान रखना कि your motto is to make x positive. It should never be negative. Now in this case, you have to change this symbol to x greater than 8. अब जब ये हो जाता है चेंज, तो आपके जो साइंस है वो भी ऑपोजिट साइन के हो जाएंगे, बोथ साइड्स. तो यहाँ मतलब माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब समझ गए आप सब. Then x is greater than -4. तो ऐसी आपकी इनइक्वालिटी बनेगी. अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है, सपोज आपकी कोई इक्वेशन आ गई है, -2 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 4. ऐसी कुछ आपकी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आ गई है. तो आपका जो ये यहाँ पर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, इसमें एक तो आपको एरोस तो लगाने ही लगाने. अब यहाँ पर जो x है ना वो r को बिलोंग करता है सपोज, ठीक है. तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ -2 और 4 को लिख देंगे. ऐसा नहीं है, आपको पूरी नंबर लाइन दिखानी है, ऐसे करके पूरी. मैं बताती हूँ आपको कितना दिखाना है. वैसे तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, बट फिर भी आपको पता रहना चाहिए. क्योंकि ये सब आपके बाद में आ सकते हैं जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे. अब देखिए मैंने क्या करा है, जो ये
-2 है, इसके साइड भी 2 और मैंने इंक्लूड कर दिया और एरो तो होना ही चाहिए, और ये 4 के साइड भी मैंने 5 6 लगा दिया है। अब ध्यान से देखो, जब रियल नंबर्स होते हैं ना तो आपको कैसे करना है इसको। अब -2 लेस देन x, तो -2 में आप एक हॉलो बनाएंगे। जब भी आपका ऐसा होता है ना तो आप हमेशा हॉलो बनाएंगे, बट अगर आपका ऐसा हो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू तो ऐसा बनेगा, ठीक है, डार्क साइन, क्योंकि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब वो भी इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर तो -2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे हॉलो बना दोगे। अब ये 4 है जो ये इंक्लूड कर रहे हो, तो 4 आप ऐसे करोगे, फिल करोगे। इसका मीनिंग है x में जो -2 से लेकर 4 जितने भी नंबर्स हैं दे मस्ट बी इंक्लूडेड। सो मैं ऐसे करके इसको डार्क बना दूंगी, ये ज्यादा ही मोटा हो गया है, एक सेकेंड बस, ये देखिए ऐसे करके। अब यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है, आपको आता ही है ये कैसे करना है। इसका मीनिंग ये है कि जितनी भी वैल्यूज है आपकी -2 से लेकर 4 वो सारी इंक्लूड हो रही है, क्योंकि ये रियल नंबर के केस में होगा। ये रियल नंबर के केस में, रियल नंबर का मीनिंग क्या होता है, जितने भी नंबर्स है वो इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर जब नंबर लाइन है इसमें -2 से लेकर 4 तक सारे इंक्लूड होने, तो हम ऐसे करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो ब्लैक वाले ढकना नहीं चाहिए, ये क्लियर दिखना चाहिए। आपको डायग्राम थोड़ा नीट बनाना है, यहाँ तो थोड़ा लैपटॉप में बना रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा अजीब सा बन रहा है। And you will also get questions like they will make a diagram, they will make a number line, and then they will ask you what is the value of x, what are the possible value of x। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर तो हो गया कि r के लिए था, ये था r के लिए। अगर ये बोलते ये होता इंटीजर के लिए तो आपके -2 से 4 तक सारे इंक्लूड होते, बट अगर ये होल नंबर को बिलोंग करता, अगर आपका ये जो है आपका सॉल्यूशन आया है ये होल नंबर के लिए बिलोंग करता, इसका मीनिंग आपका जो सॉल्यूशन सेट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, उसमें होगा 0 1 2 3 एंड 4। ऐसे मत कर देना कि -2 -1 से स्टार्ट कर रहे हो, दे मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू टू राइट होल नंबर्स। तो सॉल्यूशन सेट में ये है, तो आपकी नंबर लाइन में क्या मार्क होगा, देखो एक बार फटाफट बना देते हैं। ये 0, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो आपका जो मार्क होगा ये सब होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। अब कई बच्चे ये पूछते दीदी हम इसमें ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे पूरा ऐसे क्यों नहीं कर रहे हम इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू टू प्लॉट द होल नंबर्स। ये सिर्फ रियल नंबर के केस में होता है जो ये शेडिंग ऐसे आती है, ऐसी वाली शेडिंग, क्योंकि उसमें हमें दिखाना पड़ता है कि सारी वैल्यूज जितनी भी हमें आर में कवर करना होता है। तो इसमें आपको ऐसे करके करना है, बीट होल नंबर्स, बीट इंटीजर्स। समझ में आ गया होगा आप सब। और एक और साइन होता है अगर आप लोगों को पता नहीं है, जैसे कि ये हो गया लेस देन या ग्रेटर देन, तो इसमें आपका साइन कुछ कर्व टाइप का होता है, ये कर्व टाइप का, ठीक है। और जब आप नंबर लाइन, जैसे अगर आपका -2 से लेकर 4 तक उन्होंने बोल रखा है कि ये आपको प्लॉट करना है रियल नंबर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ -2 से तो ये कर्व होगा यहाँ पर, क्योंकि ये लेस देन है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। बट अगर यहाँ पर 4 इंक्लूड कर रहे हैं ना तो 4 आपका ऐसे आएगा, तब ऐसे करके ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरीके से भी आपको दे सकते हैं, कर्व मतलब दिस नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, और ये होता है जो इंक्लूडेड होता है। तो दो तरीके से वो आपको दे सकते हैं। डायग्राम आपको करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। 8400 400 400 नंबर को आप सेव कर लीजिए अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में। आपके चाहे कोई भी डाउट्स हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको सबके आंसर्स मिलेंगे इस नंबर पर। इसके लिए आपको पहले सेव करना पड़ेगा इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट में। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं आपको उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसे क्रॉप करना है और सेंड कर देना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। तुरंत पाएं वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड के अंदर 6 to 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस, नीट और सारे स्टेट बोर्ड के लिए। तो देर किस बात की, अभी अपना डाउट इस नंबर पे भेजिए और इंस्टेंट सॉल्यूशन पाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ मूविंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप देख सकते हैं, इसमें ax² + bx + c ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ द बेसिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये श्रीधाराचार्य मेथड होता है जो कि सबने लर्न कर रखा है, ठीक है।
आपका आएगा क्वेश्चन x फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई भी इक्वेशन दे देंगे, जैसे ये इक्वेशन दे दिया मैंने। अगर आप इसका फाइंड आउट करके मुझे बता सकते हैं आंसर, यू कैन कमेंट करके मुझे बताइए आंसर। श्रीधाराचार्य मेथड आपको लगाना है। और देखिए इसमें एग्जामिनिंग रूट्स के लिए आपको डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, b² - 4ac। अब इस को फाइंड आउट करने के बाद अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर d इक्वल टू 0 होगा देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। d लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी। और आपको पता है आपका इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है x - 2 x - 3 जस्ट एग्जांपल इक्वल टू 0। तब आप क्या करेंगे x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन में x - 3 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपके आंसर्स आते हैं। ठीक है, ये तो आपको सबको बेसिक पता ही है। बाकी जो आपके क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक एन एरोप्लेन traveled a distance of 400 kilometer at an average speed of x kilometer per hour, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आपको इनको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, इनको तो छोड़ना मत, इनको करके जाना आप प्रैक्टिस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। Now in factorization you have two theorems, factor theorem and remainder theorem. Factor theorem से पता ही चल रहा है कि इसमें अगर आपको कोई इक्वेशन दे दिया, ठीक है, अब ये जो होता है ना ये होता है f of x। अब इसमें उन्होंने बोला है कि ये x + 3 इज अ फैक्टर। तो हमेशा की तरह जब भी आपको बोले फैक्टर, f of x इक्वल टू 0 होगा, जब भी वो बोले कि फैक्टर है। अब यहाँ पर x + 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे, आप x की वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे f of x में, तो आपको दिख जाएगा कि f of x जो है वो 0 के इक्वल है। तो आपके क्वेश्चंस आते हैं कि x² + ax + 9, तो a फाइंड आउट करिए। अगर x + 3 फैक्टर है तो आपको इसमें ऐसे ही करना है, आपको f of x इक्वल टू 0 पुट कर देना है। अब रिमाइंडर थ्योरम की बारी आती है तो फिर से आपको एक इक्वेशन दे देंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ x, तो आप इसको f of x ही मानेंगे। वो बोलेंगे रिमाइंडर फाइंड आउट करिए, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि f of x इज डिवाइडेड बाय x - 2। सबसे पहले आप x - 2 इक्वल टू 0 करेंगे, हर बार आप यही कर रहे हैं, देखो तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब जो ये 2 है वैल्यू आप किसमें पुट कर देंगे, f of x में, यानी यहाँ पर f of 2 आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2³ + 4 2² + 2 × 2 + 3। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना वो आपका रिमाइंडर होगा। तो इसको आप ऐसे करते हैं, कितना सिंपल है ये। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसमें आएगा फैक्टराइज, आपको इक्वेशन दे देंगे, या तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ये। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। पहले आप x की वैल्यू 0 डालेंगे, देन 1 पुट करेंगे, देन -1 पुट करेंगे, जिससे भी वैल्यू आ जाएगी इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी जब भी पुट करके, तो आपका वही फैक्टर होगा। अगर मैं इसमें निकालूं, अब मैंने x इक्वल टू 0 पुट करा तब भी 0 नहीं आ रहा है, ये f of x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 पुट करने से आपका f of x 0 आ रहा है। ठीक है, जब आप पुट करोगे ना इसको आपको पता चल जाएगा। ये देखो ये है ना ये इक्वेशन, इसमें आप -1 पुट करके देखो तो आपको इसका आंसर 0 मिलेगा। इसका मतलब ये फैक्टर है, तो x इक्वल टू -1 ये फैक्टर है। तो आप कैसे लिख दोगे, -1 को उधर ले जाओ, +1, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है फिनिश, आपको और करना है, यानी आपको और फैक्टर्स निकाले। आप कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। यहाँ पर डिवीजन मेथड अप्लाई होगा, आप सबको डिवीजन मेथड आता ही है। ये हो जाएगा ऐसे करके +x² माइनस ये कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद बचा -4x - 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 - 4x - 4। तो आपका एक और फैक्टर आपको मिल गया है x² - 4। ठीक है, एक तो ये आपको फर्स्ट फैक्टर मिला है, दूसरा आपको x² - 4 मिल गया। इसको आप लिख सकते हो x + 2 और x - 2। तो आपके टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए, x + 1, x + 2 एंड x - 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। Now for this part, ratio and proportion, you have to do all these topics like the mean proportion, finding out mean proportion, continued proportion,
I'll show you. You can note down these terms. The quantities A, B, C, D are called the terms of the proportion. A, B, C, D are the first, second, third and fourth terms respectively. First and fourth terms are called extremes, and second, third term are called means. Quantities A, B, C, D are in proportion. Then A divided by B is equal to C by A. That is AD equal to BC. And you also know that product of extremes is equal to product of middle terms. You can see fourth proportional, and D is called the fourth proportional. The non-zero quantities of the same kind A, B, C, D, E, F are said to be in continued proportion if A by B is equal to B by C equals to C by D and so on. So if they ask you that A, B, C are in continued proportion, this means A by B is equal to B by C, right? First proportional, third proportional, mean proportional, these are the terms that you have to take care about and you have to learn them. Properties of ratio and proportion by invertendo, by alternendo, please revise all of them. By componendo and by dividendo. When we apply both componendo and dividendo, we do this like A by B is there in equal to C by D. So you will add A plus B and subtract here, and then C plus D divided by C minus D. Now you can see if A by B equal to C by D equal to E by F, then each ratio equal to A plus C plus E divided by B plus D plus F, sum of antecedents divided by sum of consequence. In matrices, you very well know that it has rows and columns, M by N. For example, this matrix has 2 rows and 3 columns. And you can also see that M cross N is known as the order of matrix. You will get questions on multiplication of matrices. If A has order 2 cross 3 and B is of order 3 cross 1, 3 by 1. So when you multiply, when you want the final answer AB, the order will be, see, you have to check if the column number of A is equal to the row number of B. If it is equal, this means the order will be 2 cross 1, the left ones, right? This is how you find out the product. Moving to next, you will also get questions on properties. You have to learn all the properties: commutative, associative, distributive. These are some important properties for addition and multiplication both. I forgot to mention this: linear, quadratic, cubic, biquadratic. लीनियर मीन्स जब आपका x की जो पावर होती है वो 1 होती है. हाईएस्ट पावर, कोई भी इक्वेशन आप देखोगे तो उसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1 है. अभी इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. हाईएस्ट पावर ऑफ x आप वो देखोगे जिसकी हाईएस्ट पावर है, तो इसमें 2 है. सो इसका मीनिंग है लीनियर मीन्स जब पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मीन्स व्हेन द पावर इज 2, क्यूबिक मीन्स व्हेन द पावर इज 3, बाइक्वाड्रेटिक मीन्स व्हेन द पावर इज हाईएस्ट पावर इज 4. और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया जैसे कि आपका 8. ये ऐसा क्यों है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? ये क्यों है? क्योंकि आप अगर इसको x टू द पावर 0 लिखोगे तो इसमें डिग्री क्या है इसकी, यानी पावर क्या है x की, 0 है. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि x टू द पावर 0 1 ही होता है. ये हो गया फैक्टराइजेशन का.
अब आते हैं हम एपी में। एपी में देखिए आपके कुछ ही फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर आपका सम ऑफ एपी हो गया, ठीक है। ये आपका सिर्फ एपी आ रहा है ना, क्योंकि जीपी तो आ नहीं रहा। n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड इवन लास्ट टर्म का भी यही होता है फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मिडिल टर्म के लिए देखो कैसे, अगर पूछ लेंगे कि फाइंड आउट द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, हाउ टू फाइंड इट आउट। अगर n हमारा ऑड हुआ, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो होगा n प्लस वन बाई टू एच टर्म, 2h टर्म, ठीक है, n प्लस वन बाई टू ये वाला टर्म। और अगर n इवन हुआ तो आपका हो जाएगा n बाई टू एंड n बाई टू प्लस 1h टर्म। ये होता है आपका मिडिल टर्म का फॉर्मूला। दे में ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चन लाइक सम ऑफ 3 टर्म्स इज, 1 सेकेंड, क्वेश्चंस कैसे, लाइक 3 टर्म्स है और उनका सम आपको दे दिया है, सम सपोज आपको 20 दे दिया, तो आप 3 टर्म्स क्या लेट करेंगे इन एपी, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये 3 टर्म्स के लिए होगा। अगर 4 टर्म्स होंगे, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, ये 4 टर्म्स के लिए। 5 टर्म्स के लिए आपका a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी, ये होता है 5 टर्म्स के लिए। तो आपको ये भी लर्न होना चाहिए। सिमिलैरिटी में आप देखेंगे तो आपके एक बेसिक जो थ्योरम है, बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आपको एक तो वो पढ़ लेना है। बाकी आपको आना चाहिए हाउ टू प्रूव दैट 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, लाइक ABC इज सिमिलर टू DEF। नाउ दिस मीन्स दैट AB जो है वो DE के इक्वल है, BC जो है वो EF के इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, थोड़ा थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी जैसा ही है। तो आपको इसमें पता रहना चाहिए कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अगर ABCDEF के सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, दैट मीन्स AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये था हमारा रिविजन सेशन, जिसमें कि मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू ऑल द चैप्टर्स, एरर्स जो आपको अवॉइड करने हैं। एक और एरर जो आए बच्चों के साथ, कई बार आपको 2 ट्राइंगल ऐसे देंगे, ABC एंड DEF। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इसमें क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, यानी आप ऐसे लिखोगे, जो यहाँ का AB है डिवाइडेड बाय DE। कई बच्चे ये करते थे AB बाई DF, ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये सब पता रहना चाहिए। हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी कमिंग लाइव फॉर अदर सेशंस ऑल्सो, लाइक ज्योग्राफी, physics, chemistry. Bye and have a good day.